Okay, so listen. Today we will discuss next part, the remaining next heartbeat. Clear? Heart beat. Yes. देखिए, we have discussed. Yes, we have discussed in previous class structure of the heart and working of the heart and functions of the heart also. Clear? मीन्स ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. Now today we will discuss about the heartbeat, pulse rate, what is pulse, what is heartbeat, या beating of heart and blood pressure. Clear? So now the means three things are remains. So we will discuss today all these three things and we will finish this chapter today. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस हार्ट बीट. व्हाट इज हार्ट बीट? जनरली यू नो वेरी बस आप जानते हो, आपने सुना भी होगा. मीन्स ह्यूमन हार्ट बीट 70 to 70 टाइम्स पर मिनट. क्लियर एवरीवंस? ये आपने सुना होगा. आप जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर्स लिसन योर हार्ट बीट बाय द instrument, and that instrument is known as the stethoscope. Clear? That instrument is known as the स्टेथोस्कोप. क्लियर? तो स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है. आप लोगों ने शायद देखा होगा, डॉक्टर्स के पास रहते हैं. क्लियर? वो अपनी गर्दन में उसे हमेशा टांग के रहते हैं. क्लियर? गर्दन में लटका रहता है. उसमें एक लाइक ईयरफोन स्ट्रक्चर होती है. ठीक है? और उसके वन एंड मीन्स एक उसके एंडेड पे एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होती है. सेकंड एंडेड टू ईयरफोन्स होती हैं दैट आर मीन्स कीप इनसाइड योर ईयर्स. क्लियर? So by these instrument in means by using the stethoscope, doctors can listen your heartbeat. Clear? So means generally means normally beating of heart, heartbeat rate is 72 per minutes. Clear? और हम इसमें बात कर सकते हैं मीन्स दिस heartbeat increase during heavy exercise, during hard work. Clear? When you do hard work, when you do exercise, heavy exercise, then this heartbeat can be increased. Clear? Okay? So means because you know very well during the means hard work and during the exercise your body need more oxygens. Clear? And more oxygens more nutrients, more oxygens. Clear? More energy means your body need more energy, and more energy means requirement of more energy fulfill by the means supply the more blood. Clear? And more blood can supply when heart beat continuously and rapidly. Clear? जब आपकी हार्ट बीट क्या होगी, ज़्यादा होगी, और मीन्स जब आपका मीन्स हार्ट बहुत ज़्यादा ब्लड को पंप करेगा. क्लियर? तो दैट्स वाई ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द हार्ड वर्क, और हार्ट बीट कैन बी इंक्रीज. क्लियर? बट नॉर्मली द हार्ट बीट रेट इज 72 पर मिनट्स. क्लियर? यानी 70 से लेकर के 72 तक क्या होती है, पर मिनट्स होती है. ओके? सो नाउ लिसन, इसमें थोड़ी सी और बात कर लेते हैं. मीन्स ये हार्ट बीट किस तरीके से, हाउ हार्ट बीट इज कॉज. क्लियर? मीन्स हाउ हार्ट इज कॉज, मीन्स हाउ हार्ट कॉज हार्ट बीट, यानी कि किस तरीके से बीटिंग करना स्टार्ट करता है. तो नाउ लिसन केयरफुली, जैसे कि मैंने आपको सिंपल्स वे में समझाया था, जो आपको मैंने बताया था डायग्राम में, वो मैंने आपको क्या बताया था कि मीन्स होता क्या है. मीन्स योर हार्ट, ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर. क्लियर? 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट, एंड जो आपका अपर हाफ पोर्शन इज एट्रियम एंड लोअर हाफ पोर्शन इज वेंट्रिकल्स. And you know very well, I also discussed the node. There are two types of nodes are present in the heart. One is SA node. Clear? One is SA node and second is AB node. Clear? SA node present in the means right atrium. कहाँ present होती है? ऐसे उदयराज जादौन, yes ask. Yes उदयराज. Okay. So means SA node present in the right atrium. Clear? And AB node present between the atrium and the ventricles. Means we can say that means junction of the atrium and ventricles. जो यहाँ पे atrium और ventricles का जो junction होता है, जो center point of the heart, वहाँ पे आपका AB node present होता है. Clear? तो means listen carefully. SA node, the full form of SA node is sino-auricular node. Sino-auricular node. Clear? The full form of SA node is sino-auricular node, and this SA node means responsible to generate the heartbeat. यही एक responsible होता है to generate the heartbeat. अब किस तरीके से होता है? Because you know very well, SA node generates small amount of electric current.
magnetic inductions, clear. Small amount of electric current can be generated by the SA node, clear. By this electric current means heart means atrium of ventricles of the heart contract and express, clear. Means contraction and expressions can be caused in the hearts, clear, because you know very well heart is a muscular structure, clear. तो मीन्स जो आपका जो हार्ट जो आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशंस होते हैं, क्लियर. एंड दीज कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशंस इन द हार्ट कॉज द हार्ट बीट, क्लियर. होता क्या है कि जैसे मीन्स सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, क्लियर. दिस इलेक्ट्रिक करंट रीचेस टू द AB नोड, क्लियर, एंड AB नोड मीन्स स्प्रेड दिस इलेक्ट्रिक करंट होल ओवर द हार्ट्स, क्लियर, बाय द Purkinje fiber. There are so many Purkinje fibers are present, clear. So by these Purkinje fibers this electric current spread in whole over the hearts. By this electric current means heart atrium and ventricle start to contract and expand, clear everyone. तो मीन्स फर्स्टली क्या होता है, फर्स्टली एट्रियम कैन कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर. कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये क्या होता है, इसमें सिकुड़न होती है, सिकुड़ता है, क्लियर, ओके, कॉन्ट्रैक्ट होता है. एंड आफ्टर दैट मीन्स वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर. लिसन केयरफुली, व्हेन एट्रियम इज कॉन्ट्रैक्ट देन वेंट्रिकल इज एक्सप्रेस, क्लियर. दोनों साथ साथ होते हैं. एट्रियम इज कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल एक्सप्रेस, देन व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट देन एट्रियम इज एक्सप्रेस. इट मीन्स क्या होता है कि प्रेशर्स of blood is increase and decrease by contraction and expansion, clear. And these contraction and expansion in heart cause the heartbeat, clear. Or by these contraction and expansions of the heart means pressure is caused, and due to this pressure blood pump into the blood flow into the blood push into the arteries and veins, sorry arteries not a veins, clear. arteries में क्या होता है, blood को क्या होता है, पुश किया जाता है, ओके. तो मीन्स दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कॉज द हार्ट बीट. तो ये हमारा हार्ट बीट है. क्वेश्चन आंसर सिंपल इतना ही बनता है कि नॉर्मल हार्ट बीट रेट इज 72 per minute, क्लियर. और इफ वी टॉक अबाउट इन हैवी एक्सरसाइज और मीन्स ड्यूरिंग द हार्ड वर्क दिस कैन बी इंक्रीज, क्लियर. ये बढ़ भी सकती हैं. इट मे बी इंक्रीज 140 हार्ट बीट पर मिनट, क्लियर, इतना भी हो सकता है, ओके. तो ये हमारा ये चैप्टर हमारा मीन्स हार्ट बीट यहाँ पे फिनिश हो गया. नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं किसके बारे में, पल्स, ठीक है. देखिए पल्स और हार्ट बीट दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. पल्स रेट, ओके, पल्स रेट या फिर पल्स, क्लियर. तो पल्स रेट ऑल्सो सेम एज द हार्ट रेट या हार्ट बीट, क्लियर. 72 to 72 पर मिनट, यानी कि 70 से 72 पर मिनट होती हैं, ये भी सेम होती हैं. लिसन केयरफुली, पल्स रेट कैन बी मेजर इन द आर्टरीज, बस इतना डिफरेंस होता है. पल्स रेट कैन बी मेजर इन द आर्टरीज. हार्ट रेट या हार्ट बीट कैन बी मेजर, हार्ट बीट कैन बी मेजर इनटू द हार्ट एंड पल्स रेट कैन बी मेजर इनटू द आर्टरीज. तो ये सारी चीजें ध्यान रखना कि मीन्स हार्ट रेट हम कहाँ पर मेजर करते हैं, पल्स रेट हम कहाँ पर मेजर करते हैं, क्लियर है एवरीवन, ओके. तो मीन्स क्या होता है, जैसे आपका हार्ट है, हार्ट में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस हुए, ड्यू टू द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ब्लड पंप इनटू द आर्टरीज, क्लियर. तो ब्लड में भी मीन्स जो आपकी आर्टरीज होती हैं मीन्स इनसाइड द आर्टरीज ब्लड प्रेशर आल्सो इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट, क्लियर. जो आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और मीन्स एक्सपेंस करता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट मीन्स blood arteries also means suffer a pressure, clear. When heart contract then pressure is increase in the blood arteries, and when heart can get expands then pressure can reduce in the arteries, clear. So this means pressure, this increase and decrease the pressure in the arteries also cause means pulse rate, clear. तो ये जो पल्स रेट जो कौन होती है ड्यू टू द प्रेशर इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन द आर्टरीज, क्लियर. तो जैसा कि हार्ट जितनी बार आपका हार्ट बीट होगी उतनी बार ही हमारा क्या होगा, पल्स रेट होगी. क्यों, क्योंकि जब भी हार्ट बीट आपका जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब प्रेशर क्या होगा, वहाँ पर इंक्रीज होगा आर्टरीज में, और जैसे वो एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर. तो इट मीन्स दैट मीन्स पल्स रेट एंड हार्ट रेट या हार्ट बीट ये दोनों ही क्या होती हैं, सेम होती हैं, 72 पर मिनट, क्लियर, in normal conditions, okay. During the heavy exercise and during the means hard working, clear, it can be increased. Generally doctors means measure the pulse rate
बाय यूजिंग योर रिस्ट, बिकॉज यू नो वेरी वेल आर्टरीज, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आर्टरीज प्रेजेंट डीप इनसाइड योर बॉडी, बहुत गहराई में होती हैं, लेकिन कुछ पोर्शंस होते हैं, सम पोर्शंस ऑफ योर बॉडी वेयर आर्टरीज कम अराइव अपर साइड या अपर सरफेस ऑफ योर बॉडी लाइक योर रिस्ट, क्लियर, रिस्ट पे थोड़ा सा ऊपर होती हैं आर्टरीज, टेम्पल्स और नेक, क्लियर। तो these are the portions, these are part of the body where arteries means come arrive upper surface of your body, clear. That's why doctor mainly check when you go near the doctor, then doctor check your means wrist to count the pulse rate. जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तब देखना कि डॉक्टर आपके हाथ को देखेगा और जैसे ही आप हाथ को पकड़ेगा देखेगा तो आप रिस्ट को पकड़ेगा तो उसके सामने उसकी जो साइड आई साइड्स होंगी वो उसके सामने लगी हुई वॉच पर होंगी। मीन्स क्या है कि डॉक्टर मीन्स मेनली मीन्स काउंट द पल्स रेट पर मिनट, क्लियर। अगर आपकी पल्स रेट 70 से लेकर 72 तक है तो इट मीन्स यू आर नॉर्मल्स। पल्स रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है नॉर्मल कंडीशंस में भी तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत ज़्यादा कम होती हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्लियर। एंड दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज द पल्स रेट कॉज द ब्लड प्रेशर, क्लियर, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर भी इसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारी पल्स रेट्स हो गई, क्लियर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो हम पार्ट के बारे में बात करेंगे वो हमारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर, क्लियर। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए इसमें कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं बचे, सिंपल सिंपल पॉइंट बचे हुए हैं, ठीक है। तो वही हम आपको मिस एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर, क्लियर, एंड इन शॉर्ट फॉर्म ब्लड प्रेशर नॉन एज द बीपी, ठीक है। ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा मिल जाती है, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्लियर। तो बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर, क्लियर। तो ब्लड प्रेशर, वाई ब्लड प्रेशर इज हाई मीन्स वाई ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज एंड वाई ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you will understand means when blood pressure is increased that condition is known as the hypertension, clear, listen carefully, when blood pressure is increased, जब बढ़ता है then this condition is known as the hypertension, इसको हम क्या बोलते हैं, hypertension, clear, ओके। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, एंड व्हेन ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज, जब कम हो जाता है then this condition is known as the hypotension, clear, hypertension and hypotension. तो hyper means blood increase the blood pressure and hypo decrease the blood pressure, and normal range of blood pressure is 122/80 mmHg. This is the normal range of blood pressure, यानी कि 122/80 mm यानी मिलीमीटर मरकरी, क्लियर। ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर होती है, क्लियर। अगर ब्लड प्रेशर से बढ़ गया तो हाइपरटेंशन, जिससे कम हो गया तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, क्लियर एवरीवन, ओके। तो जो मीन्स वो फैटी ह्यूमंस होते हैं, जो फैटी लिविंग थिंग्स होते हैं, या फैटी ह्यूमंस की बात करें, या फिर those humans they have a large amount of fat in your body, clear, they have generally this type of problems means BP problems, okay। तो इसमें देख लेते हैं और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए we are discussing about the blood pressure, तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि मीन्स ये जो ब्लड प्रेशर होता है, वाई ब्लड प्रेशर इज कॉज। लिसन्स, मैंने आपको बताया द प्रोसेस ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट एक्सपेंशन, क्लियर। तो जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट एक्सपेंशन प्रोसेस होती है, क्लियर, तो बाय दिस प्रोसेस मीन्स योर हार्ट बीट स्टार्ट, पल्स रेट स्टार्ट एंड ब्लड प्रेशर ऑल्सो स्टार्ट। मीन्स ब्लड में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो क्रिएट कहाँ से होता है, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट, क्लियर। बट when heart contract and expand normally then blood pressure will be remain normal, clear. If heart contract continuously and faster than normal conditions then your blood pressure is increased, clear. It means that the blood pressure increase when heart contract and expands fastly and rapidly and मीन्स हो सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी से हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारी जो प्रोसेस होगी वो उसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर मीन्स हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। व्हेन हार्ट बीटिंग रेट इज स्लो देन ब्लड प्रेशर गेट टू डाउन, क्लियर। तो दिस कंडीशन इज नोन एज द हाइपोटेंशन। नाउ लिसन केयरफुली, व्हेन हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट, लिसन, व्हेन हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, then this condition is known as the systolic condition, systolic, इसको ध्यान से सुनना, systolic condition, clear। सिस्टोल एंड डायसिस्टोल आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो
when heart contract, then this condition is known as systolic condition. मतलब heart contraction also known as the systolic of heart, clear? And when heart expands, clear, expands होता है तो this condition is known as a diastole, clear? Diastole, clear? तो systolic conditions and diastolic condition, clear? तो systolic and means one systole or one diastole complete one cycle, clear? One systole and one diastole, this complete the one cycle of heart, clear? This means this complete the one cycle of heart, and by this cycle, by this one cycles, heart can beat, pulse rate can cause, clear? And blood pressure can cause, या फिर नॉर्मल ब्लड बीपी कैन कॉज, क्लियर है एवरीवन? तो ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, ठीक है? देखिए ब्लड प्रेशर जो हमारे नॉर्मल तो मैंने आपको बता दिया 120 to 80 mmHg होता है, क्लियर? लेकिन ब्लड प्रेशर कैन ऑल्सो इंक्रीज इन द फैट मैन, क्लियर? एंड दोज पर्सन दे आर सफरिंग फ्रॉम द बीपी डिसीजेस. यस पुलकित, यू आर आस्किंग समथिंग? यस सर. हाँ बोलिए सर. जो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन होता है ना, उन दोनों कंडीशन में सबसे खराब कंडीशन कौन सी होती है? देखिए जो आपकी कंडीशन है, हाइपरटेंशन की बात करें, नॉर्मली हमारा क्या होता है 120 to 80, ये दिस इज नॉर्मल रेंज, क्लियर? लेकिन कभी कभी ये इंक्रीज होता जाता और ये कभी कभी कहाँ तक पहुँच जाता है 190 to 120, इतना ही पहुँच जाता है, क्लियर? तो मिस अगर इससे ऊपर हो गया तो वो हमारी फिर डेंजरस कंडीशन हो जाएगी. मतलब 180 190 थोड़ी एक नॉर्मल हम बोल सकते हैं, नॉर्मल तो खैर नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको सफर कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, वी कैन बियर दिस कंडीशन, ओके? लेकिन अगर इससे भी बहुत ज़्यादा हो गया तो इट कैन बी हार्मफुल टू आवर बॉडी, क्लियर? ओके, क्योंकि ब्लड बहुत तेज़ी से पंप होगा और इतनी तेज़ी से पंप होगा कि हमारी सेल्स को क्या है, ना तो वो उसमें से गैसेस का एक्सचेंज हो सकेगा, ना ही फूड मटेरियल का एक्सचेंज हो सकेगा, कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा. इट मीन्स वी कैन से दैट कि cells are unable to action, cells are unable to means capturing the food materials, gas molecules, etc. what are required by the cells, clear? So that's why this condition is very harmful, okay? If we talk about the hypotension, हाँ सर मैं ये कह रहा था कि जैसे जो हमारे किसी आयरन की चीज से लग जाती है तो ऐसे कहते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगना चाहिए. क्या लग जाती है? आयरन की चीज से हमारे लग जाती हाँ है हाँ तो ऐसे बोलते हैं ना टिटनेस का इंजेक्शन लगना चाहिए. हाँ तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन से सर ब्लड में क्या हो जाता है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हम आयरन से नहीं बोलते, हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड से. लिसन केयरफुली, Fe2O3 और Fe3O4, this is the means formula of ferric oxide or ferrous oxide, clear? This is a ferrous oxide, this is a ferric oxide, clear? Ferric oxide और ferrous oxide is a type of rust. ये किसके टाइप हैं? रस्ट, क्लियर? रस्ट यू नो वेरी वेल, रस्टिंग ऑफ आयरन आपने सुना होगा, जानते हो अच्छे तरीके से, क्लियर? So these are the formula of rust, and rust is harmful to our body. Rust is dangerous, clear? Rust can cause the rust can damage to our RBC if it enter in our body, if it mix in our blood, clear? अगर ये blood stream में पहुंच गई, blood में mix हो गई, then this can damage to RBC, clear? ये RBC को damage कर सकती है, clear है everyone? Okay? So and when RBCs are damaged, then blood is destroyed, and when blood destroy, then we will destroy, okay? हम भी खराब हो जाएंगे, we will die, clear? Okay? Clear? तो it means that जो ये रस्ट है, हम आयरन से नहीं डरते, हम डरते हैं रस्ट से, क्लियर? हम बोलते हैं जब भी कोई बोला जाता है तो ये बोला जाता है कि मीन्स उस लोहे में जंग तो नहीं लगी, जंग लगी होगी, रस्टिंग मीन्स रस्टेड आयरन होगा, तो रस्टेड आयरन इज डेंजरस टू अस, क्लियर? ओके, तो इट मीन्स दैट कि जो रस्ट है ये खराब होता है, तो मीन्स टू प्रोटेक्ट आवर आरबीसी फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड we get an injection of tetanus, क्लियर? ये जो एक टेटानस एक जो मेडिसिन होती है, ये इट कैन बी एंटीबायोटिक्स, क्लियर? तो ये एंटीबायोटिक्स प्रोटेक्ट आवर आरबीसी फ्रॉम द रस्ट, क्लियर? रस्ट से बचाती है. तो कभी भी आपको आयरन से लगती है तो आप क्या करते हो कि इंजेक्शन लगवा लेते हो, तो इससे अगर आपको टेटानस होता है तो भी प्रॉब्लम नहीं, और नहीं होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया होगा जहाँ तक है, ओके? सर बच्चे की नॉर्मल बीपी क्या होता है? नॉर्मल बता तो दिया 120 to 80. चाइल्ड
चाइल्ड के लिए डिफर हो सकता है। देखिए चाइल्ड के लिए ये डिफर हो सकता है, चाइल्ड के लिए मोर देन इस जो आपको 120 to 180 है, इससे मोर ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। चाइल्ड का मुझे एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं मालूम कितना होता है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा देखा नहीं है, लेकिन फिर भी चाइल्ड के लिए ये देखिए 120/80 ये क्या होता है, यहाँ से समझ लो, ये इसको समझ लो 120/80 क्या होता है। देखिए 120 मीन्स 120 mmHg and 80 means 80 mmHg, मतलब दिस इज प्रेशर 120 millimeter Hg pressure and 80 millimeter Hg pressure means that this is systolic pressure and this is diastolic pressure 85 से 110 के बीच में होता है। एक रेंज दिया है 120 to 80, इतना ही रहता है बुक में, इतना ही दिया रहता है, बाकी एक नॉर्मल थोड़ा अब ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती इसकी, ठीक है, कि बिल्कुल इतनी रहता है। आप जैसे 110 ले लो, अपन 85 ले लो, ये भी सही है, दोनों सारे सही हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही है, ये एक्यूरेट है थोड़ा सा, क्लियर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्या मतलब ये चाइल्ड है ना, ये चाइल्ड इज अपन 120/80 कौन सी एज से मानना शुरू करते हैं सर? मतलब ये आप मान सकते हो एडल्ट मीन्स आपका 12 इयर्स, क्लियर। वैसे तो ये आपका 6 ईयर ये हो जाता है वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फिर भी आप ये एडल्ट, एक नॉर्मल पर्सन की बात करें, नॉर्मल एडल्ट पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल एडल्ट पर्सन। तो एडल्ट कौन होता है, मीन्स द पर्सन दे हैव क्रॉस द पुबर्टी एज, क्लियर। तो पुबर्टी एज मीन्स आपका 15-16 मान लो आप, मीन्स आपका 12 ईयर्स आप मान सकते हो, क्लियर है। ओके, तो देखो आप इसको समझ लो 120 और 80 ये क्या होता है, दिस इज सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर Hg and this is diastolic pressure 80 mm यानी 80 millimeter Hg, clear। now listen, देखिए systolic conditions when heart is contract, clear। suppose that this is your heart, this heart is contract like that, ये contract होगा, clear। तो contract होगा at the condition of contract means pressure is increased because volume is decreased, clear। तो means at that condition pressure is increased and this will be increased till 120 millimeter Hg at the normal conditions, clear। and second condition in the diastolic pressure, in the diastolic pressures means heart become expands, means ये क्या होगा, expands होगा, and when heart become expands then volume will increase and then volume will increase then pressure will decrease, clear। तो it will be decrease up to 80 millimeter Hg, that's why we can write 120/80 millimeter Hg of normal means blood pressure, clear, of adult persons, clear है आपके पास। तो यहाँ पे ये है आपका 120/80 mm। हाँ सर, जिसका बीपी लो हो जाएगा उसकी हार्ट बीट भी लो होगी ना? हार्ट बीट बिल्कुल लो होगी, आपकी 72 कम हो जाएगी, जो आपकी जो हार्ट रेट्स होती है, हार्ट बीट होती है 72 पर मिनट्स होती है, वो आपकी कम हो जाएगी, क्लियर। और डॉक्टर्स किस इसी तो मेजर करते हैं, जो आपकी जो पल्स रेट होती है, जो डॉक्टर्स इसको चेक करते हैं, वो क्या मेजर करते हैं कि आपकी जो पल्स रेट है या जो आपकी हार्ट बीट है वो सही चल रही है नहीं चल रही, क्लियर। ऐसा नहीं आपकी नॉर्मल से कम हो गई है, नॉर्मल से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो वो पर मिनट आपका 30 सेकंड 15 सेकंड इस तरीके से पकड़ के आपके हाथ को वो एक आइडिया लगा लेती हैं। जैसे 72 पर मिनट्स है तो 30 सेकंड में क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा, 15 सेकंड में उसका भी 1/4 कर देंगे वो, तो एक आइडिया लगा लेते हैं वो, हाँ कि इनकी जो हार्ट बीट है या फिर पल्स रेट है वो नॉर्मल है, क्लियर। सर यस सर, बीपी में वो ज्यादा नमक खाने की क्यों तो सलाह देते हैं? because BP salt maintain the blood pressure, yes, because you know very well salt have minerals like sodium and chlorine, clear, and iodine also, and iodine and sodium maintain the blood pressure, maintain the blood flow, clear। because sodium and potassium pump जब आप आगे पढ़ोगे in the means higher classes then you will discuss sodium and potassium pump, clear। the sodium and potassium pump help to मीन्स कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के कंडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये आप अपने जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर आएगा आपके 10th में उसमें पढ़ सकते हो आप, थोड़ा आपको मिल जाएगा थोड़ा देखने के लिए, क्लियर। तो मीन्स ये जो आपके जो मिनरल्स होते हैं, दीज मिनरल्स हेल्प टू नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड, क्लियर। तो दैट्स वाई डॉक्टर्स एडवाइज टू टेक सॉल्ट इन ड्यूरिंग द बीपी कंडीशंस, क्लियर। यस, एनी अदर क्वेश्चंस?
बिल्कुल देखिए सिंपल सा एक फंडा है, अगर आप खाना ज़्यादा खाओगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी और अगर नॉर्मल से कम खाओगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर, ज़्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे और कम खाओगे तो वीक हो जाओगे। क्लियर, तो मीन्स योर बॉडी रिक्वायर्ड मीन्स एक तरीके से इनफ अमाउंट जो आपकी बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है आपकी बॉडी की, जितना चाहिए रिक्वायरमेंट मटेरियल यू कैन टेक। क्लियर, आप उससे कम लोगे या ज़्यादा लोगे तो इट मे बी डैमेज, इट मे बी हार्मफुल टू आवर बॉडी। क्लियर, तो जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है उतना ही लेना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है प्रैक्टिकली यू नो वेरिएबल्स। क्लियर, yes listeners carefully, only 10 minutes are remaining, so we discuss the last point। देखिए you know very well there are two type of fluid means two type of circulatory system present in our body, one is blood circulatory system and second is lymph circulatory system। so now we have discussed only the blood। clear, we have discussed only the blood, the second liquid fluid is lymph, so lymph is remain, so now we will finish lymph in 10 minutes। clear, इसको finish करते हैं। तो you know very well the second type of circulatory system या second type of liquid fluid present in our body which is lymph, and lymph made a lymph circulatory system। clear, okay, so now we are discussing about the lymphatic system। clear, one is blood circulatory system, clear, and second is lymphatic system। तो ये भी हमारा इसी का पार्ट है ट्रांसपोर्ट का, lymphatic system। clear, so now listen carefully, lymphatic system made by mainly three organs, one is means lymph, मेन इंपोर्टेंट क्या होगा, lymph होगा, second is lymph vessels, जैसे कि आपका ब्लड बनाता आर्टरी वेन्स, क्लियर, एंड ब्लड, सेकंड इज lymph vessels, okay, lymph vessels, and third is lymph node, third is lymph node, lymph node also known as the lymph gland, clear, lymph node also known as the lymph glands। clear everyone, so means lymphatic system means this is a second type of circulatory system present in our body। clear, there are two type of circulatory system present in our body, one is blood circulatory system and second is lymph circulatory system। clear, so lymphatic system is made by lymph, clear, lymph vessels and lymph node or lymph glands। clear everyone, okay, now first we will discuss about lymph। तो what is lymph, ये क्या होता है, तो यू नो वेरी वेल lymph is a means light yellow color substance, listen carefully, blood is a red color substance, clear, and lymph is light yellow color substance and slightly alkaline in nature, pH approximately 7.4, pH to blood, clear, जैसा कि blood का था हमारा, ब्लड का कितना था मीन्स pH 7.4। क्लियर, तो मीन्स lymph also means light yellow in color and slightly alkaline in nature। okay, now listen carefully how lymph is formed। तो lymph is formed at the place of capillaries where blood means pass out from the capillaries to the tissues or cells। clear, it means that कि जहाँ पे आपका जो मीन्स ब्लड है, ब्लड मीन्स आर्टरी टू आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल टू कैपिलरीज, एंड यू नो वेरी वेल कैपिलरीज आर थिनर बॉल्स स्ट्रक्चर, थिनर बॉल मीन्स ट्यूब्स। clear, these tubes are porous means so many pores, small holes are present on the means walls of the capillaries, and from these capillaries, from these pores means liquid part of the blood come out from the tubes and come in the between the tissues and cells। clear, okay, so that means lymph is present between the cells and tissues, that's why lymph also known as the means tissues fluid या फिर cells fluid। clear, so lymph also known as the tissues fluid or cells fluid because lymph present between the tissues and cells in your body। clear everyone, okay, so means lymph also a part of blood, lymph is made by the blood। clear, when blood comes out from the capillaries then this can make lymph। okay, now कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि what are the differences between the lymph and blood। you know very well means lymph don't have a RBC। clear, okay, lymph don't have a RBC and blood have a more RBC, abundance amount of RBC, because lymph don't have RBC, that's why the color of lymph is not red। clear, okay, and the means lymph
is similar to the composition of the plasma of the blood, because you know very well blood divided into two parts, one is blood cells and second is plasma, ठीक है। तो lymph means comprise to the plasma of the blood, मीन्स इसका जो composition जो होता है वो जो आपका ब्लड का जो प्लाज्मा है कुछ उस तरीके का होता है, ओके। एंड दिस इज केयरफुली मीन्स लिम्फ हैव अ मोर अमाउंट ऑफ WBC, इसके पास बहुत ज़्यादा क्या होती है WBC प्रेजेंट होती हैं एज कम्पेयर टू द ब्लड के पास WBC कम होती है, लेकिन लिम्फ के पास क्या होती है WBC क्या होती है बहुत ज़्यादा होती हैं, बट लिम्फ के पास क्या नहीं होती RBC नहीं होती, क्लियर। दैट्स व्हाई मीन्स लिम्फ हैव अ WBC and you know very well WBCs are known as the soldiers of the body, that's why lymph help to means protect our body from the diseases, from the foreign particles, from the antigens, and means repair our immune system and maintain our immune system, okay। तो ये सारे functions किसके होते हैं लिम्स के होते हैं, means lymph also play important role to protect us our body from the diseases, clear everyone। and next point also we can see that means देखिए blood have a bidirectional flow, means heart to tissues and tissue to heart, clear, means heart to body and body to heart, clear। तो means blood have a bidirectional flow but lymph have only unidirectional flow, means lymph flow only tissue to heart, clear, tissues to heart, लेकिन कभी भी लिम्फ हार्ट से टिश्यू की तरफ नहीं आता, बिकॉज लिम्फ फॉर्म किससे होता है कैपिलरीज के पास फॉर्म होता है, बॉडीज के पास फॉर्म होता है, क्लियर। तो इट मीन्स लिम्फ हैव अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो एंड ब्लड हैव अ बाई डायरेक्शनल फ्लो। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड लिम्फ। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड लिम्फ, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, क्लियर। सेकेंड पार्ट लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ वेसल्स लाइक आपका ब्लड वेसल्स थी जैसे कि आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, कुछ उस तरीके से ये लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। लिम्फ वेसल्स मीन्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी एंड फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स, क्लियर। एंड लिम्फ वेसल्स आल्सो मीन्स इंक्लूडेड लिम्फ कैपिलरीज, क्लियर, एंड लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, क्लियर। तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन विच लिम्फ कैन फ्लो, मीन्स दैट कि मीन्स जो आपका टिश्यूज फ्लूइड था, जो टिश्यूज के पास जो लिम्फ था वो वहाँ से इकट्ठा होकर टिश्यूज से और लिम्फ वेसल्स के थ्रू कहाँ पे आता है हार्ट में पहुंच जाता है और हार्ट में अगेन मिक्स हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, क्लियर, ओके। एंड थर्ड इज लिम्फ नोड, क्लियर। तो नाउ लिसन केयरफुली, लिम्फ वेसल्स एट द स्पेशल पार्ट लाइक योर थाई, योर आर्म पिट, क्लियर। कुछ ऐसे स्पेशल एरियाज होते हैं जहाँ पे क्या है मीन्स जहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे लिम्फ मीन्स जो लिम्फ वेसल्स होती हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ मैं, क्लियर, देख लो ये। Suppose that these are the lymph vessels, clear, lymph tube. So at the special part of your body, this tubes means swell up, फूल जाती है, and by swell up form means lobe-like structure. This lobe-like structure is known as a lymph node. Clear? This lobe-like structure is known as the lymph node or lymph gland. इनको और क्या बोलते हैं lymph glands. Clear everyone? These lymph node or lymph glands contain means abundance amount of WBC, clear, and this WBC form a lymphocyte. Here these WBC is present in the lymph nodes known as the lymphocyte, clear, lymphocyte। and you know very well WBC को हम lymphocyte भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मीन्स चीज को आप डिटेल में पढ़ोगे। ये टाइप ऑफ WBC, तो WBC सो मेनी टाइप्स होती हैं, ग्रेनुलर, ए ग्रेनुलर्स, क्लियर, मोनोसाइट, बेसोफिल, यूसिनोफिल, लिम्फोसाइट। तो दीज आर द टाइप ऑफ WBC, क्लियर। तो लिम्फोसाइट मेनली हेल्प टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल एंड डिसीजेज, क्लियर, इससे बचाने का काम करती है, क्लियर। तो दिस लिम्फ नोड, दिस स्वेलर पार्ट ऑफ द ट्यूब्स और नॉन द लिम्फ नोड और लिम्फ ग्लैंड। इनसाइड द लिम्फ नोड्स मीन सो मेनी लिम्फोसाइट्स एंड WBCs आर प्रेजेंट। DWBCs प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। मान लो सपोज दैट टिश्यू से कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपके लिम्फ में आ गया, क्लियर, तो उसको यहीं पे क्या कर देगा किल कर देगा, मीन्स हार्ट्स में पहुंचने से पहले आप इसको पहले से प्योर करके फिर भेजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इम्प्योर कोई हार्ट में भेज दे और मिक्स कर दे। तो इसमें अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, कोई आपका बैक्टीरिया वायरस हैं या जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं, डेड पार्ट्स, डेड सेल्स हैं, तो ऑल थिंग्स कैन बी डिस्ट्रॉयड हियर, क्लियर, एंड आफ्टर दैट दीज लिम्फ कैन बी मिक्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ओके, तभी ये मिक्स हो पाएगा। तो ये हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम है, बहुत अच्छे से काम करती है अपनी बॉडी, क्लियर, ओके। नाउ लिसन केयरफुली, आपने कभी भी एक चीज़ और देखी होगी कि मान लो सपोज दैट कभी आपके पैर में कोई अल्सर हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, कोई घाव लग जाए, तो यू नो वेरी वेल आपको
थाइज रीजन में या जो आर्मपिट रीजन में आपको दर्द होने लगता है, क्लियर, आपको ऐसा लगता है जब मीन्स जो कोई फोड़ा हुआ है वो पैर में हुआ है और जो आपके थाई रीजन है वहाँ पे दर्द होने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दिस इज हैपन ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड। क्या होता है कि जब आपका यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ का जो इन्फ्लामेशन होगा ये लिम्फ नोड में होगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल WBCs आर प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड। तो जब यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन हुआ है तो मीन्स बॉडी को सिग्नल्स मिलता है कि मीन्स कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया हुआ है उसको किल करना है, तो यहाँ से लिम्फ नोड एक्टिव होती है और WBC को सेंड करती हैं, क्लियर, उस पार्ट तक। तो दैट्स वाई मीन WBC स्वेल अप एंड मीन्स कॉज सम स्मॉल अमाउंट ऑफ पेन, ये कुछ पेन कॉज करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के पेन भी हमारी बॉडी में हो सकते हैं कुछ समय के लिए, जब तक वो हमारा बाउंड या कोई प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए तब तक, क्लियर, ओके। तो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।